Hello everyone, this is Dheeraj Kaushal. In this video, I am going to teach you Chapter 7 Directing. After going through this topic, you will be able to explain the concept of directing and its importance in business organizations. You will be able to understand the principles guiding the directing process. In a business organization, a manager has to get the work done through others effectively and efficiently. To achieve this purpose, he performs the 5 functions of management. A manager makes the business plan. He decides what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, and by whom it is to be done. All this comes under the planning function. Then a manager arranges for the necessary resources, creates the departments and establishes the authority-responsibility relationship, which comes under the organizing function of management. A manager has to select the right person for the right job, which comes under the staffing function of management. After the staffing function, the right person is placed at the right position in the organization. But actual work begins only when these persons get instructions from their superiors. So directing comes. Directing is the main function of management. It helps in achieving the goals of the organization successfully. Let's take the example of a film director. Actor will not start acting unless and until the director says action. So directing initiates action in the organization. Business organizations have always given due importance to its managers who are capable of leading others. A manager needs to use various ways to lead, motivate, and inspire the subordinates and to communicate with them suitably. Let's discuss the meaning of directing. Directing refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading people in the organization to achieve its objectives. Ernest Dale has given one definition of directing. He says, directing is telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability. Let us discuss the features of directing. The main features of directing are, number 1, directing initiates action. जो मैनेजरियल फंक्शन है डायरेक्टिंग का, वो एक ऐसा फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन को इनिशिएट करता है. जितने भी फंक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होते हैं वो सभी एक बेस तैयार करते हैं. किस फंक्शन के लिए? डायरेक्टिंग के लिए. Manager has to perform the function along with planning, organizing, staffing and controlling while discharging his duties in the organization. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन को इनिशिएट करने वाला अगर कोई फंक्शन है तो वो है डायरेक्टिंग. तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बाकी के सारे फंक्शंस जो हैं वो एक बेस तैयार करके देते हैं. अगर डायरेक्टिंग का फंक्शन होगा तभी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है वो इनिशिएट होता है. सो इट इज़ राइटली सेड दैट डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. सेकेंड फीचर इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जो 3 लेवल्स हैं, टॉप, मिडिल और लोअर, हर एक लेवल पर हर एक मैनेजर डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है. तो जहाँ भी आप देखेंगे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप आता है वहाँ आपको डायरेक्टिंग फंक्शन देखने को मिलेगा. थर्ड इज डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू आउट उसकी लाइफ में चलता ही रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैनेजर्स आ रहे हैं या जा रहे हैं. तो नए मैनेजर के आने से या पुराने मैनेजर के जाने से डायरेक्टिंग फंक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ता. ये फंक्शन हमेशा ही चलता रहेगा. एग्जाम्पल बहुत से हैं आपके पास, चाहे इन्फोसिस हो, टाटा हो, भेल हो,
HLL हो, कितनी भी कंपनीज हैं, इंडियन हैं, मल्टीनेशनल हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि मैनेजर्स डायरेक्टिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. सो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट विल कॉन्टिन्यू. जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है ये भी लगातार चलेगा. नेक्स्ट फीचर है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. डायरेक्टिंग जो है वो हमेशा कहाँ से शुरू होती है, इनिशिएट कहाँ से होती है, टॉप लेवल से, और फिर हायरार्की में किस लेवल तक जाती है, बॉटम तक. इसका मतलब कि स्केलर चेन को यहाँ पर फॉलो किया जाता है. इट मीन्स दैट एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट. कोई भी मैनेजर है वो किसको डायरेक्ट करता है, अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को. और वो किससे इंस्ट्रक्शंस लेता है, अपने इमीडिएट बॉस से. तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आपको मिलती हैं ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस वो आपके बॉस आपको देते हैं, और आप किन से काम लेते हैं, आप किन को कमांड करते हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट होते हैं. नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस चाहती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टिंग फंक्शन को बहुत अच्छे से फुलफिल करना होता है. तो देखते हैं कि डायरेक्टिंग फंक्शन की क्या इम्पॉर्टेंस है. The importance of directing can be understood by the fact that every action in the organization is initiated through directing only. हर एक एक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसकी जो शुरुआत है वो कौन करवाता है, वो करवाता है डायरेक्टिंग फंक्शन. Directing integrates people towards achievement of common objectives. तो लोगों को इंटीग्रेट करवाना ताकि वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाता है, डायरेक्टिंग. Through directing, managers not only tell the people in the organization as to what they should do, when they should do, and how they should do, but also see that their instructions are implemented in proper perspective. तो मैनेजर सिर्फ ये नहीं कहते कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, बल्कि इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं. तो उसको फॉलो थ्रू करना मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. The points which emphasize the importance of directing are presented as follows. Number 1, directing helps to initiate action. डायरेक्टिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में किसको इनिशिएट करती है, एक्शन को इनिशिएट करती है. इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे. इफ़ अ सुपरवाइजर गाइड्स हिज सबॉर्डिनेट्स एंड क्लैरिफाइज देयर डाउट्स इन परफॉर्मिंग अ टास्क, इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव वर्क टारगेट्स गिवन टू हिम. क्योंकि अगर एक वर्कर के माइंड में डाउट्स रह जाएंगे और उसका अगर सुपीरियर उसको क्लैरिफाई ना करे तो वर्कर कभी भी अपने टारगेट को अच्छे से अचीव नहीं कर पाएगा. तो डायरेक्टिंग फंक्शन के तहत एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स के डाउट को क्लैरिफाई करता है ताकि वर्कर अपने काम को अच्छे से अचीव कर सके. तो डायरेक्टिंग क्या करता है, इट इनिशिएट्स एक्शन. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स. डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो एम्प्लॉय की एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है. किसके साथ इंटीग्रेट करता है, उसे इंटीग्रेट करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ. इट इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में लेकर चलना है कि इंडिविजुअल गोल्स और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो दोनों आपस में इंटीग्रेटेड रहें. फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज विल बी इन ए पोजीशन to convince the employees working under him that individual efforts and team efforts will lead to achievement of organizational goals. हर एक इंडिविजुअल एक टीम का पार्ट है, तो उसे अपनी जो उसकी एफर्ट्स हैं उसे टीम की एफर्ट्स के साथ क्या करना है, उसे मिलाना है, उसे इंटीग्रेट करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो बहुत अच्छे से फुलफिल हो सकें. तो इन सभी को इंश्योर करता है डायरेक्टिंग फंक्शन.
Next is directing guides employees to fully realize their potential and capabilities. जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसके थ्रू मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ का एहसास दिला पाते हैं कि उनके अंदर कितना कैपेबिलिटी है, कितना पोटेंशियल है। वो उन्हें मोटिवेट करते हैं अच्छी लीडरशिप दिखाकर, और उस मोटिवेशन से जो वर्कर है वो अपना 100% कंट्रीब्यूट कर पाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके अंदर इतना पोटेंशियल है वो मोटिवेट हो जाते हैं और अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे पाते हैं। सो अ गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ हिज एम्प्लॉयज़ एंड मोटिवेट देम टू वर्क अप टू देयर फुल पोटेंशियल। Directing facilitates introduction of needed changes in the organization. We all know change is the law of the nature. Change तो आता ही है। लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो चेंज को हमेशा शुरुआत में रेजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं उसका। लेकिन इफ़ेक्टिव डायरेक्टिंग के थ्रू आप मोटिवेट कर सकते हैं, उनके साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें लीड कर सकते हैं, ताकि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो चेंज को रेजिस्ट ना करें बल्कि वो कोऑपरेट करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंज इंट्रोड्यूस हो रहा है वो आसानी से आ सके। एग्जाम्पल के थ्रू इस पॉइंट को समझते हैं। इफ अ मैनेजर वांट्स टू इंट्रोड्यूस द न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, देयर मे बी इनिशियल रेजिस्टेंस फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टाफ। हो सकता है शुरुआत में अकाउंटिंग स्टाफ उस नए अकाउंटिंग सिस्टम को रेजिस्ट करें, बट if manager explains the purpose, provides them the training, motivates them with additional rewards, तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि employees may accept the change and cooperate with the manager. Next is brings stability and balance. डायरेक्टिंग जो है इफ़ेक्टिव तरीके से अगर की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशन में आएगी स्टेबिलिटी और रहेगा हमेशा बैलेंस, क्योंकि ये किसको फॉस्टर करेगा, किसको ग्रो करेगा? लोगों के अंदर आएगी कोऑपरेशन की फीलिंग और वो कमिटेड रहेंगे हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, विच विल हेल्प टू अचीव द ग्रुप गोल्स एंड टू अचीव बैलेंस अमंग वेरियस ग्रुप्स, एक्टिविटीज़ एंड डिपार्टमेंट्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ग्रुप होते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सभी में आपस में कोऑपरेशन होना, कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी के बीच में ये जो फीलिंग है कोऑपरेशन की, कमिटमेंट की, बैलेंस को लेकर आने का जो रोल है वो निभाया जाता है डायरेक्टिंग फंक्शन के ज़रिए। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। A manager has to follow certain principles while implementing this function of directing. Providing good and effective directing is a challenging task as it involves many complexities. A manager has to deal with people with diverse background, expectations. Organization में अलग अलग background के लोग काम करते हैं, उनकी expectations भी organization से अलग अलग होती हैं, इसीलिए this complicates the directing process. तो इस प्रोसेस को अच्छे से निभाने के लिए बहुत से प्रिंसिपल्स बने हैं। तो एक मैनेजर को ज़रूरी है कि डायरेक्टिंग प्रोसेस को फुलफिल करते वक्त वो इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को ज़रूर अडॉप्ट करे। दीज प्रिंसिपल्स आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बिलो। दीज आर नंबर 1, मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस प्रिंसिपल emphasizes that directing techniques must help every individual in the organization to contribute his maximum potential for achievement of organizational objectives. हर एक एम्प्लॉई, हर एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहद ज़रूरी है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है। जितनी भी उनकी अनटैप्ड एनर्जीज़ हैं उनको कौन रियलाइज़ करवाएगा, उनको कौन फुली यूटिलाइज़ करवाएगा? वो है मैनेजर। तो मैनेजर को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एक इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को 100% मिलती रहे।
For example, a good motivation plan with suitable monetary and non-monetary rewards, दोनों rewards का इस्तेमाल करना होगा एक अच्छे मैनेजर को एम्प्लॉय को क्या करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो क्या करें, contribute their maximum efforts for the ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे उनके अंदर रहेगी सेटिस्फैक्शन और वो अपना जितना भी उनके अंदर पोटेंशियल है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड इज द हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। Very often we find that individual objectives of employees and organizational objectives are understood as conflicting to each other. कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कई बार इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। एन एम्प्लॉय मे एक्सपेक्ट अट्रैक्टिव सैलरी, मॉनिटरी बेनिफिट्स टू फुलफिल हिज पर्सनल नीड्स। The organization may expect employees to improve the productivity to achieve expected profits. तो एम्प्लॉय जो है वो अच्छी पे पैकेज चाहता है, रेम्यूनरेशन चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स बढ़े। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हार्मोनाइज किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करके, बिल्कुल भी नहीं। दोनों के ऑब्जेक्टिव एक साथ ही अचीव होंगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, गुड डायरेक्टिंग शुड provide harmony by convincing that employee rewards and work efficiency are complementary to each other. Next is the unity of command. This principle insists that a person in the organization should receive instructions from one superior only. बिल्कुल ज़रूरी है ये चीज़ कि unity of command को follow किया जाए। एक subordinate को instructions किससे मिले, सिर्फ one superior से। If instructions are received from more than one, it creates confusion, employee confuse हो जाएगा, conflict arise हो जाएगी और situation आ जाएगी disorder की। तो इस चीज़ को हमेशा मैनेजर को ध्यान में लेकर चलना है कि वो हमेशा किस चीज़ को ध्यान में लेकर चले, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को, क्योंकि ड्यूल सबऑर्डिनेशन की सिचुएशन तभी आती है जब यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को वायलेट किया जाता है। नेक्स्ट इज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स। बहुत सी टेक्निक्स हैं डायरेक्शन को करने की। अप्रोप्रिएट मोटिवेशनल एंड लीडरशिप टेक्निक को यूज़ करना है एक मैनेजर को डायरेक्टिंग करते वक्त, क्योंकि जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी नीड्स अलग अलग हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हैं, एटीट्यूड अलग है। तो डायरेक्टिंग करते वक्त मैनेजर को ध्यान में लेकर चलना है सबऑर्डिनेट की नीड्स को, उनकी कैपेबिलिटी को, उनके एटीट्यूड को और सिचुएशन को, और उसके हिसाब से वो चूज़ करेगा कोई भी पर्टिकुलर टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम पीपल मनी कैन एक्ट एज पावरफुल मोटिवेटर। कुछ लोगों के लिए पैसा जो है वो बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है, ये सब पे बात लागू नहीं होती। वाइल फॉर अदर्स प्रमोशन एक्ट एज इफेक्टिव मोटिवेटर। तो मैनेजर को डिसाइड करना है कि किस पर्सन के लिए मुझे कौन सी डायरेक्शन टेक्निक को इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज द मैनेजरियल कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशन हर एक लेवल में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। कभी भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए या कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं आना चाहिए। डायरेक्टिंग शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट टोटल अंडरस्टैंडिंग टू सबऑर्डिनेट्स। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस कन्वे की जाए सबऑर्डिनेट को, ताकि उसको चीज़ों की क्या हो, टोटल अंडरस्टैंडिंग हो। कैसे करेंगे इस चीज़ को इंश्योर? थ्रू प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है ताकि मैनेजर इस चीज़ को इंश्योर कर सके कि सबऑर्डिनेट अंडरस्टैंड्स हिज इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ चलती हैं, तो एक मैनेजर को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अपोज नहीं करना बल्कि उसका इस्तेमाल करना है ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही शुड स्पॉट and make use of such organization for effective directing। क्योंकि कई बार जो चीज़ें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेजर तक नहीं पहुंच पाती, वो कई बार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो अपने काम को अच्छे से करवा पाता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी इम्पॉर्टेंस देनी है। तो ये कौन सिखाएगा हमें? ये हमें सिखाते हैं मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज द लीडरशिप। While directing the subordinates, manager should exercise the good leadership as it can influence the subordinate positively without causing dissatisfaction among them। तो अगर एक मैनेजर एक अच्छा लीडर साबित होता है तो उसी के नक्शे कदम पर चलते हैं उसके सबॉर्डिनेट्स। तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर मैनेजर में एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होगी तो उसके सबॉर्डिनेट कभी उसको अपोज नहीं करेंगे, बल्कि जैसा वो काम करने के लिए बोलेगा ठीक वैसा ही काम करके उसको देंगे। तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो करना है एक अच्छे मैनेजर को। And then comes the follow through। Mere giving of order is not sufficient। Manager should follow it up by reviewing continuously whether orders are being implemented or not। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो he should take the necessary action। Suitable modification should be made in the direction। ऑर्डर देने भर से काम पूरा नहीं हो जाता, बल्कि मैनेजर को इस चीज़ को लगातार चेक करना है कि मैंने जो ऑर्डर दिए हैं क्या उसी तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, और ज़रूरत पड़ने पर उसे अपनी डायरेक्शंस में अगर कोई सूटेबल मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरह से एक मैनेजर अपनी डायरेक्शन को बना सकता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर वो इन प्रिंसिपल्स को करता है फॉलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।